اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا اور دلوں کے حال بہتر جاننے والا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع ہے پاکستان میں پوری دنیا سے امیر ترین لوگ آئے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد میں ان کا اجلاس 2 روزہ اجلاس ہو رہا ہے۔ کل پہلا روز تھا، آج دوسرا روز ہے، اور اس اجلاس کو سبوتاژ کرنے کے لیے BLA اختر مینگل اور PTI عمران خان کی بہنوں نے جو پروگرام بنائے تھے نا، اللہ کی مدد سے وہ سارے کے سارے ناکام بنا دیے گئے ہیں۔ عمران کی تینوں بہنیں گرفتار ہو چکی ہیں، مارنگ بلوچ گرفتار ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ عنقریب اپنے انجام کو اختر مینگل اور محمود اچکزئی بھی پہنچیں گے۔ یہ سب کے سب غداروں کا ٹولہ ہے، یہ ملک دشمن ہے اور عالمی طاقتوں کے ساتھ مل کے ہمارے ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس پہ کھل کے بات ہوگی اور مختصر سے وقت میں ہوگی۔ تو اس سے پہلے میری آپ سب سے اپیل ہے کہ دیکھیں، یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے۔ کوشش کیا کریں کہ ویڈیوز پوری دیکھا کریں، اسکپ نہ کیا کریں، جو اشتہارات وغیرہ آتے ہیں ان کو بھی دیکھ لیا کریں، اور ویڈیوز کو گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں۔ اور باقی جو ہے نا، دیکھیں اب آ جائیں جناب کے اصل موضوع کی طرف۔ اسلام آباد میں جو کانفرنس ہو رہی ہے نا، اس میں پوری دنیا سے امیر ترین انویسٹر، امیر ترین لوگ آئے ہوئے ہیں، کاروباری حضرات آئے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ ان غیر ملکی ایجنٹوں کو حکم دیا گیا تھا کہ اس کانفرنس کو ناکام بنانا ہے، اسی لیے وہ دھرنا دے کے بیٹھا ہوا تھا وہ بڑا غدار اختر مینگل۔ اس کے بعد اس کے ساتھ چھوٹی غدار تھی مارنگ لانگو، اور اس کے بعد اس سے سب سے بڑا کنگ جو غدار ہے وہ ہے محمود اچکزئی، عمران خان، یہ بڑے غدار ہیں۔ اور اس کی بہنوں نے پروگرام بنایا ہوا تھا کہ اس کانفرنس کو کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دینا ہے۔ انہوں نے تینوں بہنوں نے عمران کے کہنے پہ پوری پارٹی کو کال دی ہوئی تھی کہ ہر بندہ 200 سے 300 بندہ لے کے اڈیالہ جیل پہنچے، وہاں سے پھر ہم نے اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا ہے۔ اسلام آباد کا اعلان نہیں ہوا تھا کہ پہلے ہی گرفتار نہ کر لیں، لیکن پلاننگ یہی تھی۔ تو اندر کے لوگوں نے ایک پلاننگ لیک کر دی۔ اب PTI کے اندر بھی تو گورنمنٹ کے لوگ موجود ہیں، سرکاری اداروں کے لوگ موجود ہیں، تو کچھ اللہ کی مدد حاصل ہو گئی۔ اللہ ہمارے ملک کو بچا رہا ہے اور یہ غدار ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ قوم یوتھڑ کو میں اتنا بتا دوں کہ پاکستان کے 76 سالوں کے قرضے کی تعداد تھی 25 ارب ڈالر، اور عمران نے 4 سالوں میں اس 25 ارب ڈالر کو 50 ارب ڈالر پہ لے کے چلا گیا، صرف 4 سالوں میں۔ 75 سالوں کے قرضے 4 سالوں میں کیسے ڈبل ہو گئے؟ کام 1 روپے کا نہیں کیا، ایک اینٹ تک نہیں لگی، کوئی سکول نہیں بنا، کوئی کالج نہیں بنا، کوئی یونیورسٹی نہیں بنی، تو آخر یہ پیسہ گیا کہاں؟ یہ قوم یوتھڑ نہیں سوچے گی، ان کے دماغ ہے ہی نہیں، ان کو اللہ نے اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ ان کے پاس دماغ ہو۔ نہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ حج کرتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ان کا بس اٹھتے بیٹھتے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، جو بھی ان کی فیملی کے اندر
जो पीटीआई का हमायती ना हो उसको गाली गलौज करना, बदतमीजियां करना, बुजुर्गों और बड़ों की तौहीन करना। और उसके बाद देखें अब किस तरीके से ये अल्लाह की पकड़ में आए हैं कि ये अब अपने अनकरीब अंजाम को पहुंचने वाले हैं। कुछ पहुंच चुके हैं, कुछ पहुंचने वाले हैं। जो बाहर बैठ के कुत्ते की तरह भौंक रहे होते थे ना फौज पे, अब उनका भी नंबर लग गया है। वो तकरीबन 7,000 के करीब डिपोर्ट होके कराची पहुंचे हैं। वहाँ से उनको कुछ कराची पहुंचे हैं, कुछ इस्लामाबाद पहुंचे हैं, कुछ लाहौर पहुंचे हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। ये आए हैं जनाब, अमेरिका से डिपोर्ट हुए हैं, फ्रांस से डिपोर्ट हुए हैं, दुबई से डिपोर्ट हुए हैं, सऊदीया से हुए हैं, कतर से हुए हैं, कुवैत से हुए हैं, और इसके अलावा जो है ना मलेशिया से हुए हैं, और इंग्लैंड से हुए हैं। इन जायलों को अब बंदा पूछे कि यहाँ तुम्हारी माँ को कौन खिलाएगा, बूढ़े बाप को कौन खिलाएगा, तुम्हारी बीवी को कौन खिलाएगा, बच्चों को कौन खिलाएगा। उधर अच्छा खासा रिजक कमा रहे थे ना, अपने बच्चों का रिजक कमाते, मुल्क के लिए ज़र मुबादला भेजते, मुल्क की तरक्की में शामिल हो जाते। लेकिन इन लोगों में तरक्की में शामिल होने की बजाय तरक में शामिल होना पसंद किया, गंद में। गलीज लोग, ये मक्खी देख लेना, गलीज तरीन जानवर है ना, तो वो गलाजत पे ही हमेशा बैठती है। उसका काम ही है गलाजत पे बैठना। इनका काम भी है गलाजत में ही जाना। इंसाफ वाली साइड पे ये नहीं जाएंगे, जहाँ पे वतन की बात होगी उधर नहीं जाएंगे। तो अल्लाह हिदायत दे जी, मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ। तो इनका अभी वो देखें, हमारे मुल्क में इतनी कुछ इन्वेस्टमेंट आने जा रही है कि यकीन जानिए कि मैं दोनों हाथों से सलूट पेश करता हूँ हाफिज सैयद आसम मनीर साहब, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसफ जरदारी, बिलावल भुट्टो को। ये सब की काविशों का नतीजा है, अकेले बंदे का नहीं। सब ने मुश्तरका कोशिशें की हैं। इसमें सबसे ज़्यादा कोशिशें शामिल थी ये हाफिज सैयद आसम मनीर साहब की और शहबाज शरीफ की। शहबाज शरीफ एक कैंसर पेशेंट है, लेकिन उसके बावजूद वो देख लें कितना काम कर रहा है। मरियम नवाज एक औरत होते हुए कितना काम कर रही है। और इन जायलों को ये नहीं पता, जालत से गिरे हुए गलीज इंसानों को, कि केपीके तबाह करके रख दिया। अच्छा, किसी पठान को कहो ना भाई केपीके में काम क्यों, वो फंड सारे पंजाब खा गया। और जायलो कुछ अकल से काम लो। अब पंजाब फंड बराबर तकसीम होते हैं आबादी के हिसाब से। अब पंजाब की आबादी ज्यादा है इसलिए पंजाब को ज्यादा मिलते हैं, लेकिन केपीके को उसकी एक एक बंदे के हिसाब से, तनासब आबादी के हिसाब से, वसाइल के हिसाब से उसको डबल मिलता है। क्यों, कैसे डबल मिलता है? एक तो उसको वो फंड जो 400 सूबों तक तकसीम होता है वो भी मिलता है, और इसके अलावा बिजली जो वहां पे तैयार होती है उसकी भी रायटी मिलती है, वहां से जो गैस निकलती है उसकी भी मिलती है। इसी तरह बलोचिस्तान है, वहां पे भी डबल मिलते हैं उनको। एक तो जो उनके सूबे का हक मिलता है वो भी मिलता है उसको, और उसके अलावा गैस की मद में भी उनको अरबों रुपया मिलता है महीने का। सरदार खा जाते हैं, वो आम बंदे तक पहुंचने ही नहीं देते हैं। जिनके पीछे लग के ये जाहिल अवाम, ये दुश्मन है अवाम के। अख्तर मेंगल की जायदादें जाके देखो ना, गूगल सर्च कर लो, खरबों का मालिक बन गया। इसके बाप दादा क्या इतने खरबों के मालिक थे? फिर भी वतन का सौदा कर रहे हैं ये गद्दार, वतन को बेच रहे हैं, अपनी माँ को बेच रहे हैं। वतन कौन होता है? धरती को माँ कौन होती है? धरती माँ, मतलब धरती भी हमारी माँ है। असल माँ तो धरती ही है, जो हमें मरने के बाद भी पनाह देती है, अपने अंदर समो लेती है। दुनिया में भी हम उसके ऊपर चलते फिरते क्या कुछ करते हैं, लेकिन वो सब कुछ दरगुजर कर जाती है। तो आप देखें किस तरीके से अब ये हुआ है कि जो कि ये
तीनों बहनों ने जो प्लान बनाया था, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है उसमें पार्टी वर्कर नहीं गई। उनको पता था कि ये गद्दार जमात है, ये गद्दार औरतें हैं, इन्होंने पंगा करना है कोई ना कोई तो हम रगड़े में आ जाएंगे। उनमें से कोई गया ही नहीं। तीनों बहनें गई हैं, कुछ किराए के लोग साथ लेके गई थी, वो भी भाग गए वहां से, और तीनों बहनों को रियासत ने उठा के जेल में डाल दिया। अब ये इनका अंजाम यही था, क्योंकि ये भी 9 मई के वाकयात में बराह रास्त मुलव्वस थी। और जिनका वो मैं अलग सा बिलाग करूंगा कि जिनके जमानतें हुई हुई हैं ना, वो भी इंशाल्लाह अब अपने अंजाम को पहुंचेंगे। 9 मई के पूरी कल जो फैसला आया ना, उसकी तफसील से एक बिलाग करूंगा इसके बाद। तो आप देखें इंशाल्लाह हमारा मुल्क तरक्की की तरफ गामजन हो गया है और तेज़ी से तरक्की कर रहा है, और इन्वेस्टर आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है। शेख रशीद का बयान मौजूद है। उस वक्त ये वज़ीर था ना कौमी असम्बली का, वज़ीर दिफा था, इसका बयान मौजूद है कि मुल्क दिवालिया हो चुका है। ख़ुद इमरान खान का बयान मौजूद है कि मुल्क दिवालिया हो चुका है। लेकिन अल्लाह की मदद से वही मुल्क आप देख लें कितनी तरक्की कर रहा है कि पूरी दुनिया से इन्वेस्टर आ रहे हैं। पूरी दुनिया के स्टॉक एक्सचेंज बैठ चुकी हैं। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज को भी एक झटका बड़ा शदीद लगा है, लेकिन संभल गई है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद के साथ। तो कोशिश करें कि अपनी फ़ौज का साथ दें। हमारी फ़ौज इस वक्त 5 बॉर्डरों पे 5 माज़ों पे लड़ रही है। बैरूनी अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे, इंडिया के बॉर्डर पे, अंदरूनी बैरूनी दहशत गर्दों से और आलमी ताकतों से। इन 5 जगहों पे लड़ रही है। अपनी फ़ौज को इस वक्त जितनी हम आवाम की ज़रूरत है, इससे पहले कभी नहीं थी। फ़ौज का साथ दें, अपनी एजेंसियों का साथ दें, अपने मुल्क का साथ दें। पाकिस्तान है तो हम सब भी हैं, तो पाकिस्तान नहीं है तो हम सब गए। इन्होंने तो भाग जाना है बाहर। इमरान ने अपनी बीवी के पास भाग जाना है, अपने बच्चों के पास भाग जाना है, वो उसने महफूज जगह पे रखे हुए हैं, और बाकियों ने भी भाग जाना है। ये अख्तर मैंगल के दुबई में प्लाजे हैं, इंग्लैंड में घर है, अमेरिका में घर हैं, ये गद्दार हैं, इनके हर मुल्क में घर हैं। तो हमारा जीना मरना इसी मुल्क के साथ है। मुल्क के वफादार रहें, अफवाज पाकिस्तान के वफादार रहें, और अपनी गवर्नमेंट के वफादार रहें। और अल्लाह हमारे मुल्क को, हमारे हाफ़िज़ सैयद आसिम मुनीर साहब को, उनके वफादार साथियों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, लंबी सेहत वाली ईमान वाली ज़िंदगी दे, और गद्दारों को उनकी नस्लों समेत तबाह व बर्बाद करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।